You must be aware that you have received one official ID. Ma'am, actually, I'm facing some problem in signing in, so I have talked to doctor. I have talked with ma'am, Sugan ma'am, so I'll call her today. Fine, fine. Okay, okay, fine. Okay, so very good afternoon to one and all present here. And even I'm surprised to see the number is only 50 from the student side. Uh, so why it is less, I don't know. Fine enough. So yesterday we started with the basics of business communication. We talked about communication like what are the things we covered yesterday? Anybody else can tell me, please? Yeah, yes, ma'am. About the type communication and what is the scope and nature of communication. Okay. So can you define it? We discussed so many definition also. Anybody can define it? Yes, ma'am. Ma'am, the definition of ma'am, communication, ma'am. Actually, it is a medium of exchange of, or say it is a medium of communication of both sender and receiver. And there are so many natures like both have mutual understandings, and the way of talking is very good so that both can understand each other problems and also suggestions. Okay. Anybody else, please? Ma'am, it is a process of sharing the information and ideas between two persons. One is sender and the other one is receiver. Okay. Anything else? Anybody else would like to add? Yes? Why others are keeping mum? क्या हुआ class? Can I hear something else from other people? Can you see the PPT, everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, fine. So, anything else anybody would like to add? Someone has written here, Harshit Harshit Chandra. Sending and receiving transformation. What is this? Sending and receiving transformation मतलब क्या है बेटा? Communication is the simply act of transferring information from one place to another. Okay, fine. So we are clear with the points, that is definition of the or the meaning of the communication, right? The word is clear to all. Yes. What is communication and how to define it? Yes. Fine enough. So let us start the next topic, that is nature of business communication. As we talked yesterday only, that business communication, it is having, whatever things we are going to discuss here in the nature, that we have already talked while discussing about meaning and definition of the communication. So one thing what you have done it, one thing is your nature. So nature of business communication, when we are talking, here are the points like two-way process. So why it is called two-way process? Because communication is having, two people, sender and the receiver. So until and unless you are sending something, some information you are going to share, and the sender is sending, and at the other uh, part, receiver is not there, so your message will not go anywhere. So receiver must be there. And how you understand that your message is conveyed? When you get some kind of feedback. As of now, if I am saying that I'm asking some questions and you are answering to it, so what is happening exactly? Once you are answering, that means the process is completed. The communication is completed. Means whatever I have said, you have understood and you have replied back. So this is the
So getting the feedback is very much important. And when we are getting the feedback, it is known as a two-way process, right? Many a time it happens, no? Like we are talking over the phone or we are taking the class. So when we are doing it, so what is happening? I have to ensure that whether I am saying something, other like you people, students are able to understand it or not, whether my voice is going or not. Like what I did in the beginning, I asked whether I am audible or not, right? So you have to ensure that yes, whatever I am saying, I am communicating, that is being delivered and it has been understood in the letter and spirit, right? जो दूसरा पार्टी है उसको समझ आ गया है कि हमें क्या करना है, ठीक है? So that is why it is known as two-way process. Now we are saying it continuous process. Why it is continuous process or ongoing process? Like once, like you people are connected to us now, fine, or we are working with the affiliated university, that is affiliating university, that is Guru Gobind Singh Prasad University. So communication between DSPSR and IP University, it is the continuous process. Let's suppose we send some letter to them, to the university, regarding some matter related to examination, that when we are going to conduct this first semester. I got so many call or queries regarding that we have examination just after 1 month or like that from the student side. I said, no, it is not like that. But just to ensure it, if I'm going to write a letter on behalf of DSPSR to the university, right? So that is one conversation I have started. So when it is going to finish up? ये finish होगा क्या? नहीं, ये चलता रहेगा. अब आप कहोगे मेरे एग्जाम पे चलता रहेगा, नहीं, something else. So that is why it is called a continuous process. When we are taking it like the letter in spirit, it is communication is an ongoing process. It is essential for human activity to exist and in business and non-business organizations. See, if I'm doing something, I have to ensure that communication is not going to stop at the one level or the other. That will be continued. So why it is happening like that? Because every when and then I need some support from the other person, so I'm going to say something to that person. That person would require some information from me, so that person would talk to me. So when we are saying in terms of the organization, so basically communication is going to help us in different aspects, especially in the decision making process. So on the basis of the information what I have received from the director sir, from the other staff members, so on the basis of that only I'm going to work. Is it clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Others may also speak. I have not said that others cannot speak or you cannot write. Fine. Now the third point, it is pervasive. The meaning of the word pervasive is enveloping something. So pervasive means that whatever things are there, like functions of management, we call it, or we call it like any kind of management terms even. So that is the pervasive in nature. Pervasive means it is available, it is exists everywhere. Everywhere means in all types of organization, whether that organization is small, medium, or large, right? Whether 10 people are working, whether thousands of people are working in the organization. So in all types of the organization, uh, uh, communication it exists. Then all levels of management, whether it is lower level management, whether it is middle level management or the top management level, everywhere communication exists. Why? Because without communication, we are not going to do anything. Any information, if chairman sir would like to convey to the middle level, he has to talk to them. Director sir, he has to convey the message to director sir. Director sir, he has to ensure that whatever things chairman sir has said, that in the same way, in the same letter and spirit, that must be transferred to the lower level people who are working in the organization, right? So you have to communicate with from one to the other level of the management, and in the same level of the management, even if like some people, you said that I'm not getting my attendance done marked, so please ma'am help me out. So what I did, I just convey the same message to Sugandh ma'am.
So at the same level, we are working. I mean, same at the same level also, communication is happening. You are saying something, I'm conveying the message to her, right? And then definitely, I did not come back to you people, the person who told me that. But yes, I just ensured that yes, ma'am should ensure that all the names are available in that list where you are marking your attendance. So it is the pervasive everywhere in every kind of organization and in every levels of management. It is available. I hope it is clear. Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Fine. So now thank you. So the next point is exchange. So when we are saying communication, that means something we are going to exchange. Whether it is idea, if I know something, how to do it. Let's suppose some work is being done in the organization, and I know how to, minimize the different activities in this task, and that must be fulfilled or completed with the less efforts. So what I can do, I can talk my idea to somebody. So how I am going to communicate that idea? Through communication. I'm going to explain that why not to work this task in such manner, right? Or maybe some information. Just now, we received some information from the university regarding classes and all. So what we did, that we conveyed the same message to the all the class teachers of earlier batches. That was regarding the examination of your seniors. So just we conveyed that message. Again, I am telling you today, even just after your lecture, I am going to take the viva of the fifth semester students, right, of their summer training projects. So I got the information from examination department that you have to conduct the viva of your mentees today at any time as per your convenience, and you have to complete it and share the details with me, right? So what he has done, he has got some information from the university regarding the conduct of the examination, and he shared that information with us. And what we have to do now, we have to conduct the viva. All the teachers, we have to conduct the viva today, and then we are going to send back them the results, that this is the marks of the viva one student has scored. So here we are in the communication, we are going to exchange something, some information. If I'm communicating with somebody, definitely I'm going to convey some kind of message, right? So it is the exchange, and the other party should understand it. That is very much important while communication. So here it is written like to create mutual understanding by giving or seeking information, persuading or influencing others, and generate some response. So why we are communicating? To get the things done, right? Persuading and influencing others. Like examination department, what they did, they persuaded the communication that you have to conduct the viva, right? And what is happening to us? We are responding back that yes, we are going to conduct this. I have just shared the time schedule of mine, that I am going to conduct this session viva voce of the students from this time to this time, right? So what they just in the what is called, just in the in place of exchange of the information, they shared that you have to conduct the viva voce today, and I shared with them that I'm going to conduct this viva voce from this time to this time. So that is the generating the response, right? I hope it is clear to all. Yes. Now, Yes, ma'am. Yes, ma'am. thank you everyone. So now communication is more than words. Communication is more than words. Even right now I am communicating, but it is not only the impression of my words. It is having the impression of my body language as well. What kind of emotions I have right now with me. If I am having the positive emotions, I am going to convey my message accordingly. So it is not only containing the facts and figures. We are not only talking about the communication in terms of the words, but in terms of the emotions and in terms of the behavior, right? Okay. So the next point, it talks about communication flow. What is communication flows? Like Ma'am, our see, lecture ma'am, is having ma'am, actually, ma'am, your voice is not different kinds coming of clear, methods ma'am. to get the information flowed in different way. अब ये अचानक से क्या हो गया? Hello, who is not listening?
Is that clear to all? ma'am, this is Tushar, ma'am. Screen Actually, नहीं ma'am, दिख रही। your आपकी voice दिख is रहा तो not हर्षित? clearing. आपकी तो क्लियर आ रही है मुझे, आप अपना नेटवर्क चेक करो। Others are getting my voice? Yes, ma'am. Yes, ma'am. और पीपीटी दिख रहा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. तो पीपीटी किसको नहीं दिख रहा? स्क्रीन नहीं दिख रहा है। हर्षित चंद्रा, प्लीज बेटा आप ना उसको देखो, प्रेजेंटेशन वाले पे क्लिक करो, आपको स्क्रीन दिखेगा, ठीक है? अच्छा, एक दो लोग और भी अच्छा वही कह रहे हैं बार बार। ओके, वन मोर इज देयर। सृष्टि, आपको भी नहीं दिख रहा है? शीनू को भी नहीं दिख रहा है? प्लीज चेक करो अगर सब ओके। आई एम गेटिंग रिस्पॉन्स। देखो, अभी कम्युनिकेशन को यहीं से समझ लेते हैं। आप अपने चैट को देखो, काफी कुछ समझ में आ जाएगा कि अगर आपने मुझे मैसेज कन्वे किया कि मैम मुझे पीपीटी नहीं दिख रही, या तुषार ने बोला मैम मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है ना, तो व्हाट आई हैव टू डू? आपने तो मैसेज में लिख के रह गया। अगर मैं उसको रिस्पॉन्स नहीं कर रही हूँ तो क्या वो कम्युनिकेशन प्रॉपर हो गया? यस, कैन वी से दैट कम्युनिकेशन इज कंप्लीटेड? Please tell me yes or no. No, You can ma'am. write in the chat. No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. No. That's great. So now what I have to do? I have to ensure that I have to see the chat also. Some queries, some answers are coming from there also. So I have to ensure just now. And I said, I just confirmed from some of you that whether my PPT is visible, whether my sound is clear to all of you or not. So I am getting some feedback from there, from you people, that yes, ma'am, it is showing, or somebody is saying, some few more students said that I'm not able to see the PPT. So what I did, I asked just to go on that presentation login and just click on that, then you can see that. So I'm getting the feedback again from the students that yes, ma'am, I can see now. So this is how communication is happening. If it is not getting, fulfilling all the objectives, communication, why you are communicating? To fulfill some objective. Why I am teaching here? To fulfill this objective, to make you understand about the communication. Look, what I would say here, थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि आप जो कम्युनिकेशन जो हम इसको अभी पढ़ रहे हैं ना, ये जो बुक वाला है तो एग्जाम में यही लिखना होगा, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। ठीक है, जैसे अभी जो हमने, ये एक ऑफिशियल सेटअप है, आप क्लास में हो, जहाँ पे भी अपने घर में बैठे हो, और ऑनलाइन क्लास में हो और मैं पढ़ा रही हूँ, है ना? तो वी आर हाउ टू यूज द कम्युनिकेशन इन अ बेटर वे while we are working on the at the workplace. So we have to ensure, तो इस तरीके से सीखोगे ना, जो रियल लाइफ एग्जांपल्स होते हैं, तो आप बेटर सीख सकते हो। ठीक है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा आपको वर्क लाइफ पे ले आई, वर्क लाइफ नहीं, वर्क प्लेस पे ले आई। अभी भी नो आ रहा है, क्या आ रहा है भाई? नो सबका। नाउ इट इज विजिबल, स्क्रीन इज नॉट विजिबल। ये चक्कर क्या है? बाकियों को सुनाई दे रही है मेरी आवाज? हेलो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am, अब आ रही। और पीपीटी ma'am. Yes, विजिबल है? ma'am. ठीक है Yes, ma'am. बेटा, Yes, जब अब आ भी रही है, पीपीटी विजिबल नहीं है ना, औरों को दिख रहा है, तो दैट मीन्स कि वो आपके नेटवर्क की प्रॉब्लम है। तो थोड़ा सा अपने घर में इधर उधर मूव कर लो, मे बी नेटवर्क से बाहर हो जाते होगे। तो आजकल है थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है। वोडाफोन तो मेरा है, तो मैं तो मुझे लग रहा था शायद मेरी तरफ से ही प्रॉब्लम आ रही है, पर अगर कुछ को दिख रहा है कुछ को नहीं दिख रहा है, मीन्स जिसको नहीं दिख रहा है उसको प्रॉब्लम, राइट? फाइन। सो coming to the 7th point, two people. Whenever we are communicating, we require at least two people. Who are those? Sender and receiver. One person who is conveying the message, one person who is receiving that message, right? So at least two people are required while we are making the communication. Otherwise, what people are saying, are you talking to a wall? Yes. और am I talking to a wall? जैसे कि कई बार होता है ना कि सामने से किसी को कुछ बोल रहे हो, आपके साथ भी होता होगा, घर में मम्मा या पापा कुछ बोल रहे हैं, तो अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो व्हाट दे आर सेइंग कि मैं दीवार से नहीं बात कर रहा, मीन्स दीवार, वॉल इज नॉट गोइंग टू रिस्पॉन्ड बैक, यू आर गोइंग टू रिस्पॉन्ड बैक। और आप जब कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे होते तो इस तरीके की बातें सुनने को मिलती है कि मैं दीवार से नहीं बात कर रहा, मैं किससे बात कर रही हूँ या कर रहा हूँ। तो सच kind of things happens. Why? Because we need somebody to listen at the end of the receiver. कि कोई है जो मेरी बातों को सुन रहा है ना? Okay, fine. So the next point is dynamic process. Dynamic and static. I'm sure you people are clear with the meaning of that. Dynamic is something which is
everything, every time it is being changed. So that is dynamic. Or static is something like still. Like here, the PPT as of now, it is what is it is? It is static. I'm not going to change it. तो इसका मतलब ये नहीं कि जब हमने चेंज कर दिया तो डायनामिक हो गया. मतलब जैसे कि डायनामिक का मतलब है कि वो चीजें हमेशा चेंज हो रही होती है. जैसे कि अगर थोड़ा सा कंप्यूटर का नॉलेज है तो जावा वगैरह में जो काम हुआ होता है या कोई ग्राफिक्स होता है तो वो क्या होता है, डायनामिक होता है. वो चेंज हो रहा होता है, उसमें कुछ कुछ आ रहा होता है, अलग अलग टाइम पे अलग अलग चीजें दिख रही होती है. दैट इज डायनामिक. स्टैटिक इज जो चेंज नहीं होता, जैसा है आपने एक पे क्लिक किया वो वैसे ही रह रहा है. जैसे ये हमारा पीपीटी का एक स्लाइड जैसे है वैसे रहेगा जब तक कि मैं नेक्स्ट को नहीं लाऊंगी. और जब नेक्स्ट भी आएगा तो डायनामिक नहीं होगा, स्टैटिक होगा, क्योंकि वो एज इट इज है. और यहाँ पे मैंने अगर कुछ ले सपोज कुछ ग्राफिक्स बनाया होता जो कि कम्युनिकेशन को डिफाइन कर रहा होता, तो मे बी वो जो ग्राफिक्स था उसको हम क्या कह सकते थे कि डायनामिक है. वो जो पीपीटी स्लाइड है वो डायनामिक पीपीटी स्लाइड है, उसमें चेंजेस आ रहे हैं टाइम टू टाइम, राइट. सो इट इज हैपनिंग लाइक दैट. Yes, somebody has said here that keeps on changing. Yes. So that is the dynamic. So communication is a dynamic process. It is characterized by continuous change, activity or process. Continuous, we have understood it that it is having the continuous process. It is not going to end. Now the next time you will say something, the next person would say again something else to you. So that is going to be continued. The way a message is received depends upon which of the five sensory organs, that is eyes, ears, nose, tongue and touch, skin, of the receiver are the most active at that time. Sometimes it happens you are very much able to hear the things, but sometimes it happens that you are not listening properly. You are somewhere else. Physically you are present, but at that moment you have been asked to do something, you are not listening. So that means what? At that moment your ears were not working, right? So what is happening the most at that moment? Like eyes. अगर आप eyes मतलब कहोगे कि ज्यादा दिख रहा है क्या, नहीं. जब आप एग्जैक्ट उस पॉइंट पे एक्टिव हो गए ना, जस्ट नाउ वाला जो होता है, यू आर एक्टिव एट दैट मोमेंट, तो आपको कुछ और भी दिखेगा. जैसे we will study some cases, so you will understand the same problem. One time, first time you will read, you will understand something else. The second time you are going to read it, you will understand something else. Means what? You are going to, in that particular case, deeper and deeper, right? So at that moment, what kind of things are sensory organs are active, accordingly we are getting the communication completed, right? Is it clear or not? Yes, ma'am. Clear, ma'am. Yes, ma'am. Attendance link. Yes, ma'am. Attendance link किसी ने शेयर नहीं किया क्या? Just a second, please. Some people have asked that, ma'am, take the class from the beginning. So I would suggest, that I am going to share content maybe today only, whatever we have discussed in the class. मैम Right? एक चीज पूछनी थी, जैसे कोई बोल रहा था कि अटेंडेंस हमारे को वीकेंड में चलेगी, मैम वो कहाँ पे दिखेगी? क्या चलेगी? अटेंडेंस जो अगर देखनी है हमने वीक में, मतलब वीक में कौन सी में अटेंडेंस लगाई चेक कर नहीं सकते हैं लगाई, मैम जिससे. वो साइट पे आएगा बेटा, मैम कौन सी वेबसाइट पे आएगा, DSPSR? dspsr.in पे. हाँ. ठीक है मैम, थैंक यू मैम. ओके, ये मेरा लिंक कहाँ गया, पता नहीं. ये समस्या हो जाती है मोबाइल से, उसमें काम कर. कोई किसी के पास है अटेंडेंस वाली लिंक? Ma'am, I have sent it. Please keep on posting there so that they can mark their attendance, all the students. So how many faces are there? I mean, people are there. As of now, I'm not able to see as I'm sharing my PPT. How many numbers are there total? Total count? One number is there on the top right corner. 79. 79. So I'm I seeing don't know 81. whether I'm seeing 81. 79. मैम 81 है. 81. 81. Fine. तो अभी भी काफी बच्चे जो हैं, more than 25 students are not here on that. 30 rather. चलो कोई नहीं, देखते हैं. यहाँ तक हम लोग क्लियर है ना? Okay, so goal oriented. What do you mean by goal oriented? Whenever we are communicating, so communication is having some goal, right?
as I said that drop the attendance link in the message box. So that was the objective. Why I communicated this thing, just to ensure that you are marking your attendance. So attendance marking the attendance is equally important. So that's why that was the objective to communicate, right? So we have to ensure that whatever we are communicating, that communication must be having some goal to achieve. And both the parties, sender and receivers, both are aware about the goal. Why I am communicating? Like some of you said that I have just pasted that link in the chat box. Okay. So you understood that you are aware that ma'am is saying this thing just to complete this task. And you are aware, that's why you pasted that link there in the message box. Fine. बहुत ही बेसिक है, पर इसको समझना जरूरी है. आई अंडरस्टैंड कि आप लोग सोच रहे हो मैम पता नहीं कहाँ एकदम से बेसिक पे ले गए, बट द पॉइंट इज दैट बेसिक थिंग्स आर नॉट सो easy to understand because you have to do it in your work, professional life. You have to work on it. Fine enough. So the next point is interdisciplinary. When we say different discipline means what? Discipline का मतलब क्या होता है? थोड़ा सा मैं आप लोगों से पूछ लूं, आज मैं ही बताते जा रही हूँ. मैम डूइंग द वर्क इन अकॉर्डिंग वे और इन दैट वे मीन्स मतलब किसी भी चीज को एक स्टैंडर्डाइज्ड वे में करने के लिए उसको बोलते हैं डिसिप्लिन. Hello. Yes. So you were saying something. Others, somebody was speaking. Actually, I could not hear. Can you repeat it? What do you mean by discipline? Discipline. Somebody is writing here. Obeying rules or following code of conduct. No. Ma'am, performing something in a standardized way. No. Doing work in a proper manner, Mayank is saying no. Here, what do you mean by discipline? Discipline means some of you, most of you have taken commerce in 10+2, right? Okay. And maybe possible that some of your friends, they have taken up science, some of them, they have taken up arts. So I mean those things, okay? Discipline here, that is why the next point is saying contextual. पता है इसका मतलब क्या है? इन दोनों को साथ में लेके चलते हैं. अभी मैंने पूछा कि डिसिप्लिन का मतलब क्या है, तो आपने कॉन्टेक्स्ट नहीं देखा कि मैम ने किस कॉन्टेक्स्ट में पूछा है. आपने बताया कि रूल्स एंड रेगुलेशन होता है. यस, यू आर राइट, आप गलत नहीं थे, पर आपका आंसर इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जहां पे वी आर गोइंग टू डिस्कस इंटरडिसिप्लिनरी, यहाँ इस पॉइंट पे आपका कहना कि डिसिप्लिन का मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है, वो गलत है. क्यों? क्योंकि इस कॉन्टेक्स्ट में वो फिट नहीं हो रहा है ना. यहाँ पे मेरा मतलब था कि जो आपका नॉलेज डोमेन से बात थी, है ना, कि आपने साइंस पढ़ा है, कॉमर्स पढ़ा है या आर्ट्स पढ़ा है, तो दैट इज अ डिसिप्लिन ऑल्सो. ओके. So communication is having interdisciplinary science means communication is not a kind of a subject. Communication अपने आप में कोई सब्जेक्ट नहीं है ना. सब्जेक्ट या डिसिप्लिन हो तब होता, सब्जेक्ट तो है, डिसिप्लिन नहीं है. डिसिप्लिन का मतलब क्या हुआ? या तो साइंस के अंदर आता है, या कॉमर्स के अंदर आता है, या वो आर्ट्स के अंदर आता है, या उसके लिए कोई डिसिप्लिन क्रिएट होता. जैसे कि जो भी डिसिप्लिन होते हैं, अगर देखोगे तो उसका अंडर ग्रेजुएट कोर्स भी है और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स भी है, राइट. अंडर ग्रेजुएट जैसे बीकॉम ऑनर्स, तो बीकॉम ऑनर्स का जो पोस्ट ग्रेजुएट क्या है, एमकॉम भी है, रादर पीएचडी भी है. हाँ. अगर आप बात करो बीबीए का, तो बीबीए है तो एमबीए भी है. तो बीबीए क्या है अपने आप में, क्या वो डिसिप्लिन हो गया है क्या? नहीं. वो मैनेजमेंट इज नॉट अ डिसिप्लिन. मैनेजमेंट इज अ सबसेट ऑफ द मेनी थिंग्स. तो वो मैनेजमेंट भी अपने आप में डिसिप्लिन नहीं है. ठीक है. साइकोलॉजी इज हैविंग अ डिसिप्लिन, लाइक वी हैव एमए साइकोलॉजी और वी हैव बीए साइकोलॉजी एज वेल. तो ये डिसिप्लिन का मतलब था. ये समझ में आ रहा है आपको बच्चे? सबको समझ आ रहा है डिसिप्लिन का मतलब?
कि यहाँ पे मतलब है कि मैम कैन यू प्लीज रिपीट, मैम कैन यू प्लीज रिपीट, मैम एक्चुअली मैम मैं समझ नहीं पाया मैम। देखो डिसिप्लिन का मतलब यहाँ पे कॉन्टेक्चुअल होता है। पहले तो देखो 11th टर्म को पहले कर लेते हैं हम लोग कि कम्युनिकेशन इज कॉन्टेक्चुअल, इट डिफर्स अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस इन विच इट अकर्स, राइट। आपने एक ही वर्ड यूज किया और उस वर्ड की मीनिंग उस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में एक जगह कहीं कुछ और है, दूसरी जगह कोई और मीनिंग आ रही है ना। सेम वर्ड इज हैविंग डिफरेंट मीनिंग एट द डिफरेंट प्लेस। व्हाई इट इज सो? बिकॉज लेट सपोज कि मैं क्लासरूम में बोलती हूँ, ऐसा हुआ है एक बार हुआ था जो है क्लास के अंदर कि आई सेड दैट चलो क्लास में ना वो कुछ एक्सरसाइज करते हैं, कुछ प्रैक्टिकल एक्सरसाइज करते हैं। आई सेड कुछ प्रैक्टिकल एक्सरसाइज करते हैं। तो एक बच्ची बहुत इंटेलिजेंट बच्ची है, अभी वो 3rd ईयर में है। व्हाट शी सेड कि मैम किसी बच्चे का नाम लिया, मुझे उसका नाम नहीं ध्यान अभी, उसने कहा कि मैम वो ना बहुत अच्छे से एक्सरसाइज कराता है। आर यू गेटिंग द मीनिंग? आई सेड कि चलो कुछ प्रैक्टिकल एक्सरसाइज कराते हैं, सेम सब्जेक्ट बिजनेस कम्युनिकेशन के अंदर। तो उसने कहा कि मैम वो बहुत अच्छा एक्सरसाइज कराता है। मीन्स व्हाट? आई सेड रिगार्डिंग सम लाइक सम लिसनिंग स्किल, सम स्पीकिंग स्किल, सम रीडिंग स्किल, उसके ऊपर मैंने कहा चलो प्रैक्टिकल एक्सरसाइज करते हैं। मेरा ये कंसर्न था। तो व्हेन आई एम टीचिंग इन द क्लासरूम तो मेरा फिजिकल एक्सरसाइज से तो कोई मतलब ही नहीं है। मेरा मतलब सिर्फ आपसे प्रैक्टिकल एक्सरसाइज का मतलब कुछ एक्टिविटी कराने से है ना। जबकि उसने कैसे इंटरप्रेट किया कि मैम कुछ फिजिकल एक्सरसाइज कराने के लिए कह रहे हैं, तो मैम वो जो बॉय है वो बहुत अच्छा कराता है, जो भी है एरोबिक्स दुनिया जहां। तो एंड वी स्टार्टेड लाफिंग एंड आई एक्सप्लेन द सेम थिंग देयर कि ये कॉन्टेक्चुअल होता है कि मेरे वर्ड को प्रैक्टिकल एक्सरसाइज को आपने किस तरह से समझा। आई होप इट इज क्लियर नाउ। 11th पॉइंट क्लियर है कि आपका जो भी Yes, आप ma'am. बात कर रहे हो उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है ये समझना बहुत जरूरी है। कई लोग ऐसे मिलते हैं कि आप एक्स वाई जेड की डिस्कशन कर रहे हो, वो एबीसी उठा के ले आएंगे, है ना। कई बार होता है आपस में फ्रेंड्स में भी देखना, कई बार ऐसा होता है कि आप कुछ और डिस्कस कर रहे हो, मूवी डिस्कस कर रहे हो, कोई उसमें पॉलिटिक्स लेके आए, कोई कनेक्शन ही नहीं है मूवी का पॉलिटिक्स का क्या कनेक्शन। इन जनरल आई एम सेइंग कोई मूवी ही पॉलिटिक्स से बनी उसकी मैं बात नहीं कर रही, पर अगर आप मूवी चलते हैं देखने या कुछ इस तरह का प्लान आउट करते हो ले सपोज, और वो कोई उठा के कोई पॉलिटिक्स या ये धरने की बात करने, तो कनेक्शन नहीं है ना, कॉन्टेक्स्ट नहीं, कॉन्टेक्स्ट के साथ मैच नहीं कर रहा है। तो यू हैव टू इंश्योर कि जो आप कम्युनिकेशन कर रहे हो वो कॉन्टेक्चुअल होना चाहिए, वो उसी से रिलेटेड होना चाहिए जो बातें चल रही है। कुछ एक्स वाई जेड का डिस्कशन नहीं करना है, ठीक है। और यहाँ पे इसी वर्ड को मैं यहाँ इंटरडिसिप्लिनरी में डिस्कस करना चाहूंगी कि यहाँ पे भी जो आप लोगों ने बोला जो बच्चे, वो गलत नहीं बोला, माइंड इट, आपने उसको गलत नहीं बोला है, पर वो कॉन्टेक्चुअल नहीं है, यहाँ के लिए वो सेट नहीं कर रहा है ना। तो यहाँ पर डिसिप्लिन का मतलब था कि कम्युनिकेशन इज ए इंटरडिसिप्लिनरी साइंस। ये साइंस है जो कि इंटरडिसिप्लिनरी मीन्स कि अपने आप में ये कोई सब्जेक्ट नहीं है, इसको कहीं कहीं से उठा लिया गया है। जैसे आप अगर मैं बात करूं तो ये थोड़ा सा पार्ट इसका जो डिसिप्लिन की बात करें तो एंथ्रोपोलॉजी भी यहाँ पे आता है। एंथ्रोपोलॉजी क्या होता है? एंथ्रोपोलॉजी इज टॉकिंग अबाउट और स्टडी अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग, कि आपका डेवलपमेंट कैसे हुआ है। तो जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ है वैसे वैसे आपकी जो है प्रोग्रेशन हुई है, तो आपकी कम्युनिकेशन भी आया है, सारी चीजें आई है ना। तो उस चीज का भी है थोड़ा सा, थोड़ी सी बातें साइकोलॉजी की भी आती है कम्युनिकेशन में भी। आप जब अपने बॉस को जवाब दोगे तो अगर बॉस गुस्से के मूड में बैठा है तो आप उससे आर्गुमेंट नहीं करोगे, यू हैव टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ योर बॉस, देन यू कैन रिप्लाई बैक कि हाँ ये चीज ऐसे नहीं ऐसे है। तो साइकोलॉजी का भी इनपुट आ रहा है। यहाँ पे आपका पॉलिटिक्स भी आता है। पॉलिटिक्स कैसे आता है कम्युनिकेशन में कि आपको यहाँ पे डायनामिक की हम बातें कर रहे हैं, तो जो आप बात कहने जा रहे हो उस बात का क्या असर होने वाला है। तो यू हैव टू बी पॉलिटिकली स्मार्ट कि मेरे कुछ कहने से कोई प्रॉब्लम ना हो, है ना। तो दैट इज व्हाई कम्युनिकेशन इज नोन एज इंटरडिसिप्लिनरी साइंस। इज दैट क्लियर नाउ? इसको कई सारे सब्जेक्ट से मिला यस के मैम। बनाया गया है, ठीक है। दिस इज द स्टडी ऑफ मेनी सब्जेक्ट्स, सो दैट इज व्हाई वी आर सेइंग इट इंटरडिसिप्लिनरी। ये आपका मैनेजमेंट में भी आता है। आपका जब आप ओबी एमपीओबी पढ़ोगे तो ओबी में भी बताया जाएगा कि ओबी इज इंटरडिसिप्लिनरी इन नेचर, मतलब अपने आप में सब्जेक्ट नहीं है, वो कई चीजों को मिला के पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। कई चीजों से थोड़े थोड़े से पॉइंट उठा के उसको एक सब्जेक्ट बना दिया गया है, राइट। और जो अपने आप में डिसिप्लिन है वो उसका जो है अंडर ग्रेजुएट लेवल पे भी पढ़ाई हो रही है, पोस्ट ग्रेजुएट पे भी हो रही है, उसकी पीएचडी भी हो रही है, ठीक है। आई होप ये पॉइंट सारे क्लियर हैं आप लोगों के।
Yes. Yes, ma'am. Understood, ma'am. Thank you, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Thank you so much. Formal manner, when you are saying Vartis, that means as of now where we are talking, this is a formal setup, right? अगर आप मेरे ऑफिस में नॉर्मली आके यही सब्जेक्ट पूछते हो, इसी से रिलेटेड कोई सब्जेक्ट कुछ क्वेरी करते हो बिजनेस कम्युनिकेशन से रिलेटेड, तो दैट विल बिकम इनफॉर्मल क्लासरूम, है ना? आप मेरे ऑफिस में आके पढ़ते हो कि मैम मुझे समझ नहीं आया था या कुछ भी, कुछ इंपॉर्टेंट बताए, एनीथिंग एल्स रिलेटेड टू द सब्जेक्ट, दैट विल बिकम इनफॉर्मल। और ये क्या है, अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये क्या है, ये फॉर्मल सेटअप है। यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स हैं, मैं हूँ, आप हो, सभी लोग हैं, तो दैट इज अ फॉर्मल सेटअप। तो जब जैसे कि आप बॉस से ही बात कर रहे हो, मीटिंग के अंदर बात कर रहे हो और आपका अच्छा है रिलेशन बॉस से, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको मीटिंग के अंदर कुछ भी बोलोगे, नहीं। लेकिन जब आप में भी आपको वहां हो सकता है वही का कोई पॉइंट आपने डिस्कस करना है और आपको लगा कि जो बॉस ने उसमें कहा था वो मुझे नहीं समझ आया, या तुम जो कहना चाहते थे वो क्लियर नहीं था पॉइंट, तो आप उसी चीज को उठा करके अगर बॉस के साथ वो बैठे हैं अपने ऑफिस में और आप वहां जाकर डिस्कस करते हो, तो दैट विल बिकम इनफॉर्मल। कि आपने कहा कि सर एक्सक्यूज मी, मैं कुछ क्लियर करना चाहता था, तो प्लीज बता दो। तो अगर वो बताते हैं तो दैट विल बिकम द इनफॉर्मल सेटअप, ठीक है? तो whenever you are talking, whenever you are writing is especially, देखो अभी तो हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं, है ना, इस क्लास को रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो एक तरह से ये पूरा का पूरा फॉर्मल में ही है। लेकिन जैसे कि इनफॉर्मल में क्या आ जाता है कि अगर मैं इसकी कोई रिकॉर्डिंग नहीं होती, तो मैं यहाँ पे कुछ भी करती, उसका कोई रिकॉर्डिंग नहीं होता, तो दैट मीन्स कि थोड़ा सा इनफॉर्मल वे हो सकता था। लेकिन आई हैव टू स्पीक इन अ फॉर्मल वे, I have to speak only the the things which are important related to the subject or related to you people. तो ये सारी की सारी फॉर्मल सेटअप है ना? तो जब भी आप राइटिंग में बात करते हो, जैसे कि आप अभी वी विल टॉक इन लेटर इन दी क्लास, जब हम टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, देन विल डिस्कस इट इन फॉर्मल एंड फॉर्मल इन मोर डिटेल। अभी बस इतना समझ लो कि जिसको आप ऑफिशियल सेटअप में बात कर रहे हो दैट बिकम्स द फॉर्मल, जो अनऑफिशियल बातें होती है वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, राइट? यहाँ तक सबको क्लियर है? ऑल 11 पॉइंट्स आर क्लियर टू ऑल? यस, यू कैन राइट Yes, yes or no ma'am. in Yes, your ma'am. chat box. Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. अभी तक सही लग रहा है? वी आर इन द थर्ड क्लास टुडे, क्लास इज ओके? कुछ चाहिए इसमें, अपग्रेडेशन, डिलीशन, एनीथिंग? Ma'am, what is the meaning of delegation? क्या? मैम डेलीगेशन का मतलब क्या होता है? डेलीगेशन? यस मैम। डेलीगेशन का मतलब होता है, वो मैनेजमेंट का टर्म है, पढ़ाएंगे सर तो बताएंगे आपको। डेलीगेट करना ओके होता मैम, है ओके। कि मैंने अपना कुछ काम है, मैं मेरे पास बहुत सारे काम है, मैं टीम लीडर हूँ और मैंने अपने काम को अपने जूनियर्स को डेलीगेट कर दिया। ठीक है, आप अपने सीनियर को डेलीगेट नहीं करते हो, इट इज ऑलवेज टू द जूनियर्स, कि आप अपने टीम में जो ओके लोग मैम, हैं ओके मैम। उनको, आप टीम लीडर हो, आपने अपने काम को डेलीगेट कर दिया। लेकिन एक चीज डेलीगेशन में होता है कि आप पावर डेलीगेट नहीं कर पाते हो, आप एक्टिविटी को डेलीगेट करते हो। पावर आप ही के साथ होता है, तो जो उन्होंने गलत किया उसके लिए रिस्पॉन्सिबल यस आप ही मैम। रहोगे, है ना? पावर कैन नॉट बी ओके मैम, डेलीगेटेड। ओके मैम। आप एक्टिविटी को, काम को डेलीगेट करा सकते हो, पावर को नहीं कर सकते। पावर विल लाई मीन्स विद यू मीन्स ओनली। मैम डिस्ट्रीब्यूटिंग द वर्क और पावर। पावर नहीं, पावर वो आप ही के पास रहेगा, क्योंकि वो जो भी गलती ओके। करेंगे उस काम में, जितनी गलतियां होंगी और आपने उसी के बेस पर रिपोर्ट कर दिया, तो सारी गलतियां आपकी मानी जाएगी उस मैम एम्प्लॉय की नहीं, अकाउंटेबिलिटी चाहे आप हमारी उससे होगी। जितना लड़ लो, अकाउंटेबिलिटी आपकी होगी। यस, ओके मैम, ओके मैम। ठीक है, चले आगे बढ़े। अच्छा, Yes, किसी ने ma'am. पूछा है मैम कुछ क्लासेस छूट गई थी हमारी, तो मैं देखती हूँ कि क्या प्रोसेस चल रहा है। अदरवाइज व्हाट आई कैन डू, सारे वीडियोस मेरे पास ही हैं रिकॉर्डेड, तो आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं उसको आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। और ये जितना भी कंटेंट है जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आई विल प्रोवाइड यू इन द पीडीएफ फॉर्मेट। आज ही मैं दे दूंगी जितना मैंने अभी क्लास लिया है, जितना अभी तक हम लोग कर चुके हैं। एंड आई विल ट्राई कि जो भी है क्लास 1 क्लास 2 करके उन वीडियोस को भी मैं आपको शेयर कर सकूं। मेरा जहाँ पे अपना है, इफ इट इज पॉसिबल कि मैं मेल पे कर दूं तो दैट इज अच्छा है, अदरवाइज मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल देता हूँ जो आप। हाँ, वो जो भी मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे ही भेजूंगी, अभी तो मैं व्हाट्सएप पे ही कर पाऊंगी। ओके मैम।
ठीक है, चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। नीड एंड और सिग्निफिकेंस फॉर बिजनेस कम्युनिकेशन, व्हाई कम्युनिकेशन इज रिक्वायर्ड। अगर जरूरत नहीं है तो हम लोग ग्रेजुएशन लेवल पे आके कम्युनिकेशन या बिजनेस कम्युनिकेशन पढ़ने की नीड क्या है ना। कई बार लगता है ना कि बहुत ही सिंपल सब्जेक्ट है तो इसको पढ़ने की जरूरत क्या है, पर आपको मैं बता दूं कि बिना कम्युनिकेशन का आप कुछ भी नहीं कर सकते, लाइफ में हम कुछ कर ही नहीं सकते, है ना। तो वी हैव टू कम्युनिकेट। Even I can tell you one story. The importance of communication is like, you know, one एक बार की बात है कि भगवान जो है लॉर्ड शिवा वो बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं किसी के ऊपर, कहते हैं ऐसा कि खुश हो जाते हैं तो कहते हैं जो भी मांगना है मांग लो, तो वरदान देने को तैयार हो जाते हैं। तो जो होते हैं उन्होंने कहा कि एक भक्त होता है उनका, वो खुश हो जाते हैं, कहते हैं कि तुम्हें ना मैं एक वरदान देता हूँ, तुम्हें जो मांगना है मांग लो। और उसको चाहिए थी 3 चीजें। ये आपके लिए असाइनमेंट है, अभी हमें बताओगे तुम लोग चैट पे लिख करके, या बोलना चाहो तो बोल सकते हो कि कैसे बोले कि उसका सब कुछ आ जाए। तो एक्चुअली वो बहुत ही जो था वो गरीब था, बहुत ही गरीब था, उसके पास पैसे नहीं थे बिल्कुल भी। तो वो चाहता था कि उसके पास बहुत सारे पैसे आ जाएं, है ना, ताकि वो अपनी लाइफ आराम से काट सके। जो उसकी माँ थी, मदर उस पर्सन की, उसकी दोनों आंखें खराब थी, वो देख नहीं सकती थी। तो वो ये चाहती थी कि भाई कुछ भी हो तो मेरी आंखें ठीक हो जाए, है ना, ताकि मैं दुनिया देख सकूं अपनी बाकी जिंदगी। तो वो कहती थी बेटा कुछ भी हो तो मेरे लिए मेरी आंखें ठीक करा दे। तो उसको लगा कि पैसा तो ठीक है पर मेरी माँ की ख्वाहिश रह जाएगी कि जो है आंखें नहीं ठीक हो पाएंगी। और उसकी वाइफ है तो उनके बच्चे नहीं हैं, तो वो चाहती है कि मेरा भाई एक संतान हो जाए जो है। तो लेकिन यहाँ पे जो आशीर्वाद है भगवान का, उसमें वो एक ही चीज मांग सकता है ना। तो हाउ टू नरेट और हाउ टू you know vardhan, how to ask that from the god so that each of the wishes may be fulfilled. Can you tell me one sentence, एक लाइन लिखो इसके लिए जिससे कि वो तीनों चीजें आ जाए। तो वो कैसे मांगे तो उसकी तीनों चीजें पूरी हो जाए, तीनों विश पूरी हो जाए। पर विश एक ही है, भगवान तो एक ही ग्रांट किए हैं, पर वो इस तरह से मांगे कि उसकी तीनों विश पूरी हो जाए। तो टेक दिस चैलेंज एंड राइट इट नाउ, one sentence, only one sentence. This is the assignment for this class today, to understand the importance of business communication, rather communication। business तो नहीं है यार, वैसे business ही है, भगवान के साथ उसका business ही है एक तरीके से। yes, I would like to see from the system। नहीं नहीं, वो ऐसा ग्रांट ऐसा नहीं मांग सकता है। अनुराग, यू आर वेरी स्मार्ट, he cannot ask for such। हाँ, सैनिटाइजर मैंने कभी लगाया नहीं आज तक। मैं नहीं लगाती, मेरे को स्मेल से प्रॉब्लम होती है, मैं नहीं लगाते। यहाँ है तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम। अच्छा, मैं नहीं लगा, ये मैम लोगों के पास होगा। यस, क्लोज्ड वंस में वो खुद नहीं आएगा, मनी मांग लेगा वरना उससे सब हो जाएगा। अच्छा जी, नहीं सबको अपना ही चाहिए, तो कैसे होगा पार्ट। यस, इस ये बच्चा स्मार्ट है, पार्थ ने लिखा है, एंड दैट इज द थिंग। सबकी विशेष पूरी कर दो, विश एक ही विश है। ये कौन है जिन्हें अभी याद आ गई है क्लास की, अवंतिका at the end of the class is joining। who is this अवंतिका। अवंतिका नाम का तो कोई बच्चा नहीं है हमारे लिस्ट में भाई। अवंतिका, who are you, please write your name, official name here। yes, so what he has said, पार्थ अग्रवाल, उसने सही से सही लिखा है। यही विश मांगेगा वो कि आप जो है भगवान जी से कि हमें क्या लिखा है इसमें, आई एम गोइंग टू रीड इट आउट। कहाँ गया। यस, मेरी माँ मेरे बेटे को सोने के चम्मच में खाता हुआ देख ले।
लिखा था वहाँ, जैसे भी इसको बोलना चाहिए। यस, दैट इज हाउ। ये कौन है भाई? अवंतिका, कैन यू राइट इट हियर और आई एम गोइंग टू रिमूव यू। अभी अभी लास्ट में 10 मिनट पहले आने का क्या मतलब है? पहली बात तो ये नहीं, अब जो भी ट्राई कर रहे हैं, शिवानी और एनीबडी एल्स, read the sentence what he has written part that is to be modified, वही है, ठीक है ना? Who is this Avantika? I want to hear, or please show me. You can on your video, please turn on your video please. ये अभी क्यों आ रहे हैं लोग? अभिषेक, कोई है? मेरी आवाज जा रही है? Yes, ma'am. आ रही है। Who is this Avantika? अवंतिका को नहीं ma'am. सुनाई दे रहा है क्या? कौन है? प्लीज राइट योर नेम बेटा। अब ये कौन है? तुषार। ये अपने ऑफिशियल आईडी से नहीं आओगे तो ऐसे ऐसे नाम आएंगे इसमें, पता नहीं क्या क्या। मैम एक्चुअली मैम आई एम तुषार जायसवाल मैम। मैम प्लीज डोंट कंफ्यूज। अरे बेटा, तो तुम्हारा नाम अलग अलग क्यों आ रहा है? अभी तो दिखा रहा था तुषार जायसवाल। नो नो मैम, मैम मैं आपकी क्लास ले रहा हूँ मैम। मैंने इसलिए बोला कि मैं अपनी आपकी क्लास ले रहा हूँ, वो कोई और है मैम। हाँ, आई नो इट कि तुम्हारा तो नाम दिखा रहा है। ये भी तुषार है, तुषार एक और भी है, आई नो, पर वो अपना नाम आना चाहिए ना बेटे, तुषार। ये अभी तक बताया नहीं अवंतिका किसने ज्वाइन किया है? एटलीस्ट अपने नेम से ज्वाइन करो अगर आप ऑफिशियल से नहीं कर रहे हो तो। और ऑफिशियल में प्रॉब्लम है तो प्लीज रेक्टिफाई इट विद योर कोऑर्डिनेटर सुगंध मैम। एनीवे, अटेंडेंस सबने लगा लिया है? यस मैम। यस Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, मैम। ma'am. अवंतिका मैडम है सर है, आई डोंट नो, नेम अलग है तो आई कैन नॉट समझ। ये चैट ग्रुप कौन सा शेयर हो रहा है यहाँ पे? कुछ मत लिखो। मैम बीकॉम अनऑफिशियल का है कोई ग्रुप है? नहीं तो अनऑफिशियल में क्यों जाना है, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। अभी आई केम टू नो अबाउट वन ऑफ द एपिसोड, आप लोग को पता होगा मे बी, देर आर 3 तुषार हियर, तुषार जायसवाल, तुषार सिंह एंड तुषार कुमार। तो आई थिंक ये जो तुषार जो भी ये नाम लिख के आ रहा है वो दैट इज तुषार कुमार। तो बेटे आपको जो है, क्योंकि बाकियों के नेम्स मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे, दूसरे तुषार के पूरे नेम्स दिख रहे हैं यहाँ पे, तो बेटे प्लीज आप अपने ऑफिशियल आईडी से आइए, पहली बात, ठीक है? एंड द सेकेंड थिंग कि अनऑफिशियल आईडी व्हाट्सएप ग्रुप किसी को भी ज्वाइन नहीं करना है, पहली चीज मैं बता दूं। और अगर कोई करता है तो कॉलेज विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम। हमारे पास मत आना, हम टीचर्स के पास, कि हमारे साथ ये हो गया, हमारे साथ वो हो गया, हमारा किसी ने नंबर ले लिया, हमारा किसी ने कुछ और हो गया। प्लीज, आई एम टेलिंग यू टू एवरीवन, बॉयज एंड गर्ल्स, टू बोथ। अभी अभी सुना मैंने कि फर्स्ट डे क्लास में कौन सी क्लास थी, आईटी की क्लास में क्या हुआ है, आई एम अवेयर ऑफ एवरीथिंग एंड दैट वाज द रीजन आई डिस्करेज अबाउट दिस काइंड ऑफ व्हाट्सएप ग्रुप। ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों के उस क्लास में नहीं गई हूँ या मैं तो मुझे पता नहीं है ना? तो और पहली चीज कि आपको ये अपने ऑफिशियल आईडी से ही लॉग इन करना है क्लास को। प्लीज इस बात को समझ लो, लिख लो कहीं। लग रहा होगा मैं बार बार बोल रही हूँ, एक ही चीज बोल रही हूँ, इवन टाइम इज अबाउट टू ओवर एंड स्टिल आई एम टॉकिंग अबाउट दिस काइंड ऑफ नॉनसेंस थिंग्स, बट दिस इज नॉट नॉनसेंस बिकॉज at the later stage you are going to face the music. So whosoever it is, whosoever has joined, everyone is supposed to exit from that group अगर बना रखा है तो। अननेसेसरी प्रॉब्लम्स को क्रिएट नहीं करना चाहिए। जब एक है ऑफिशियल ग्रुप, आपके पास वहां सबके नंबर्स दिख रहे हैं, जरूरत क्या है? नंबर्स दिख रहा है ना, जिसको बात करनी है कर लो। अगर आपस में एक दूसरे को जानते हो, बात करनी है, और आपस में जानते हो तो एक दूसरे का नंबर ऑलरेडी आपके पास है।
What is the need of the second group? I don't know. कोई एक रीजन हो तो बता दो मुझे, मैम ये रीजन है. Can anybody tell me the reason why the other group is required? जिसने शेयर किया वही बता दे. अभी तक तो नाम नहीं बोला कि कौन है वो. नाम बोला क्या उसने? अवंतिका ने. अच्छा, तो so Tushar Kumar is saying that I am not satisfied with this answer. So give me the right answer, beta. Tushar, you can give me the right answer. It's okay that you are not satisfied. Maybe something new I will get. I am telling you, I believe that I have very good command over, numerology, numerical things. But once I was sharing something related to intelligence in the class, and I was having only two methods to solve that particular question. And one student, she came and she just solved that in the other way, and I learned that too. तो मे बी पॉसिबल कि आपको कुछ और अलग से पता हो तो बताइए कि उसको कैसे मांगा जाए. मैम लाइक मुझे पता है क्या डाउट है कि उसकी मम्मी को मतलब क्या चाहती थी उसके लिए, तो वो अगर वो ये नहीं चाहती होगी तो नहीं ना, उसकी माँ मांगती कहती थी ना कि कुछ कर दो, मेरा इलाज करा दो. उसके पास पैसे नहीं थे ना, मेरा इलाज करा दो, मेरी आंखें ठीक करा दो, मेरी आंखें ठीक करा दो. तो ये उसको पता था कि उसको चाहिए. अरे जिसको चाहिए होता है माँ और बीवी छोड़ती नहीं है, पीछे पड़ी रहती है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए. लेकिन फिर माँ को ये भी तो लग रहा होगा मेरे बच्चे का क्या होगा, ये तो मेरे इसने विश कर दी, अब वो खुश है. ऐसा नहीं है. देखो अब अपनी इसको इधर उधर घूमते रहो, ऐसे नहीं होता है. उसको क्या पता, माँ को तो पता ही नहीं है ना. भगवान वहां खड़े हैं और उसको आशीर्वाद मांगना है ना, वरदान लेना है. तो माँ को तो घर पे पता ही नहीं है ना कि वो बर्बाद कर रहा है कि अच्छा कर रहा है. अच्छा होगा है ना. उसको पता है कि मेरी माँ कहती है मेरी आंखें ठीक करा दो, उसको पता है मेरी बीवी कहती है मुझे बच्चे, उसको पता है दोनों चीजें, और उसको पता है कि मुझे क्या चाहिए, है ना. तो दैट्स व्हाई यू देखो, अगर तुम ऐसे बोलोगे कि उसको ऐसे सोचेगी ऐसा सोचेगी, वैसे नहीं चलेगा. ये इसको अननेसेसरी स्टोरी ना बनाओ. ये समझो कि उसको कैसे कहना है. दैट वी हैव टू लर्न इन कम्युनिकेशन, राइट. जो आपको कहना है वो क्लियर होना चाहिए. अच्छी बात है कि आप कुछ उसमें अपना इनपुट डालना चाहते हो, पर कुछ अच्छा बना हुआ है उसको खराब करने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए. कल हमने सीखा है ना, हमें आपस में एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए. कुछ ऐसा ऐड करो कि वो और अच्छा हो जाए, रिफाइन हो जाए. दैट इज ओके. उसको कुछ और अच्छे तरीके से लिख सकते हो, जो है वो भी कर सकते हो. सम्यक ने जैसे कुछ लिखा है उसमें, हाँ एक ही बात है, उसने उसमें थोड़ा सा ऐड किया है कि मेरे क्या लिखा है उसमें, मुझे और मेरे बेटे को. हाँ, पर मुझे और मेरे बेटे को में ना बेटा उसका बेटा नहीं आ रहा है, मतलब आई मीन ग्रैंडसन नहीं आ रहा है. इसने क्या लिखा था, मुझे पढ़ना पड़ेगा क्या दोबारा से पार्ट. अब ये है, अब इसने मुझे लिखा तो मैं अब थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ कि मैं उसमें कुछ गलत तो नहीं पढ़ ली थी. मेरी माँ मेरे बेटे को, यस इसने सही लिखा है. पार्थ वाले में मेरी माँ मेरे बेटे को, तो मेरे बेटे को मीन्स उस जो भी वहां पे है किसान है या वट एवर इट इज, तो उसके बेटे को. तो उसकी वाइफ का विश पूरा हो गया. और मेरी माँ, तो माँ देख ले तो माँ की आंखें ठीक होगी तो ही तो देखेगी. उस समय आपने जो लिखा है, मैं चाहता हूँ कि मेरी माँ मुझे और मेरे बेटे को, तो एक ही बात है, उसमें कुछ ज्यादा नहीं है. तो चलो फिर भी ठीक है, आपने कुछ ऐड किया तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है. फाइन एनफ. तो लेट्स स्टॉप क्लास हियर. कुछ कहना है आप लोगों को? एनीथिंग एल्स वुड यू लाइक टू से? यस, ऐसे शांति में जाओगे तो पता No, नहीं ma'am. चलेगा. Anything else? No, ma'am. Anybody? No, ma'am. You would like me to add something to make this class? I mean, अभी थोड़ा सा बेसिक समझ लो, फिर आपको काफी कुछ करने को मिलेगा. Okay, ma'am. Okay, ma'am. So anything would like to add me here? You can say that. I don't think so.